یہاں آپ کو بتائیں پنجاب اسمبلی کے انتخابات ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیل دائر کرنے کا مرحلہ ختم۔ پنجاب اسمبلی کی 297 نشستوں پر پولنگ 14 مئی کو ہوگی۔ محکمہ صحت فیصل آباد نے 6000 افراد پر مشتمل ملازمین کی فہرست ڈپٹی کمشنر کو بھجوا دی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کا معاملہ ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیل دائر کرنے کا وقت ختم۔ پنجاب اسمبلی کی 297 نشستوں پر پولنگ 14 مئی کو ہوگی۔ الیکشن ٹریبیونل امیدواروں کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات 17 اپریل تک نمٹانے کے پابند ہوں گے۔ امیدواروں کی تصدیق شدہ فہرست 18 اپریل کو لگائی جائے گی۔ الیکشن نہ لڑنے والے امیدوار 19 اپریل تک کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں۔ امیدواروں کو 20 اپریل کو انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ پنجاب اسمبلی کی 297 نشستوں پر پولنگ 14 مئی کو ہوگی۔ ادھر صوبائی اسمبلی جنرل الیکشن 2023 کی تیاریاں۔ محکمہ صحت فیصل آباد نے 6000 افراد پر مشتمل ملازمین کی فہرست ڈپٹی کمشنر کو بھجوا دی۔ ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈک سٹاف پر مشتمل عملہ الیکشن میں ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے گا۔ فہرست میں بنیادی مراکز صحت، دیہی مراکز صحت، ڈسپنسریوں، ہسپتالوں اور محکمہ صحت کے دفتروں میں تعینات عملہ شامل ہے۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر اسفند یار کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ ماں اور بچہ صحت پروگرام میں تعینات 2300 ملازمین شامل ہیں۔ ہسپتالوں میں تعینات 2000 ملازمین سمیت 1000 ڈینگی ورکرز اور 550 ویکسینیٹرز بھی شامل ہیں۔ تمام ملازمین کی فہرست الیکشن کمیشن کی ہدایت پر بھجوائی گئی۔ دوسری جانب این 108 کے انتخابات کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ میاں فروخ حبیب نے الیکشن منسوخ کرانے کے لیے ریٹ دائر کی تھی۔ پنجاب میں این 108 اور این 118 میں ضمنی انتخابات روکنے کے لیے درخواست پر سماعت کی گئی۔ جسٹس شاہد کریم نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز احمد اور فروخ حبیب کی متفرق درخواست پر سماعت کی۔ پنجاب میں 2 حلقوں پر ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، جبکہ قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے 120 دن سے کم عرصہ رہ گیا ہے۔ 120 دن سے کم دن ہو تو ضمنی انتخابات کرانا قانون کے منافی ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں پہلی ڈیجیٹل مردم شماری اور خانہ شماری کا سلسلہ اختتامی مراحل میں داخل۔ مردم شماری کو 100% یقینی بنانے کے لیے تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن کا عمل بھی شروع ہو گیا۔ ڈویژنل کمشنر سلوت سعید نے افسران کو تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ ملک کے 7ویں جبکہ پہلی ڈیجیٹل مردم اور خانہ شماری کا سلسلہ اختتامی مراحل میں داخل۔ مردم شماری کی 100% یقینی بنانے کے لیے تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ ملک کے 7ویں جبکہ پہلی ڈیجیٹل خانہ اور مردم شماری کا عمل تکمیل کے آخری مراحل میں فیصل آباد ڈویژن بھر میں مردم اور خانہ شماری کے بہتر نتائج کے حصول کے لیے تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن کا عمل شروع کر دیا گیا۔ ڈویژنل کمشنر سلوت سعید نے افسران کو تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ تاحال اندراج نہ کروا سکنے والوں کا اندراج یقینی بنایا جائے۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد زبیر اور سی ای او ایجوکیشن افتخار خان کی ڈیجیٹل سپروائزر سے میٹنگ ہوئی۔ ڈیجیٹل مردم شماری میں ویریفیکیشن کے دوران کسی بلاک میں مردم شماری میں غلطیاں یا نامکمل معلومات سامنے آنے پر متعلقہ شمار کنندہ اور سپروائزرز کے خلاف محکمانہ کارروائی کی وارننگ دے دی گئی۔ میٹنگ میں تمام عملے کو 2 دن میں اپنے بلاکس کے گھرانوں کی تفصیلات مکمل کر کے ریویو کرنے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ فوکل پرسن حمید الرحمان، اسلام آباد سے ڈی او عمار اکبر اور نمائندہ ڈی سی آفس فضل الہی اور دیگر نے اجلاس میں شرکت کی۔ فضل الہی کی رپورٹ پر وائی بلاک مدینہ ٹاؤن کے ہیڈ ماسٹر سپروائزر کامران حفیظ کی مردم شماری میں ناقص کارکردگی پر نوٹس جاری کیا گیا۔ میٹنگ میں غیر حاضر سپروائزرز کو اے سی سٹی آفس طلب کر لیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں گندم خریداری مہم 2023 سے 24 کا آغاز ہو گیا۔ گندم خریداری کے 7 مراکز قائم۔ باردانہ کی فراہمی بھی شروع کر دی گئی۔ ادھر چنیوٹ میں بھی گندم کی فصل پک کر تیار ہو گئی۔ کاشتکاروں نے فصل کی کٹائی شروع کر دی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں گندم خریداری مہم 2023 سے 24 کا آغاز ہو گیا۔ گندم خریداری مہم کے لیے سینٹرز قائم ہو گئے۔ ضلع میں 7 خریداری مراکز قائم کر کے باردانہ فراہمی شروع کر دی گئی۔ اسی حوالے سے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر شمائلہ بانو کا کہنا ہے کہ تمام تر سینٹرز میں باردانہ کی تقسیم آج سے شروع کر دی گئی ہے۔ اوپن پالیسی کے تحت گندم خریدی جائے گی۔ محکمہ خوراک 11,20,000 بوریاں خریدے گا۔ کاشتکاروں کے لیے سینٹرز میں بہتر انتظامات کیے گئے ہیں۔ ادھر چنیوٹ میں گندم کی فصل پک کر تیار۔ کاشتکاروں نے فصل کی کٹائی شروع کر دی۔ ضلع بھر میں 2,46,000 ایکڑ رقبے پر گندم کاشت کی گئی تھی۔ مزدور کٹائی کے بعد بھریاں باندھنے میں مصروف ہیں۔ زرعی ماہرین نے کاشتکاروں کو ہدایت کی ہے کہ گری ہوئی فصل کی کٹائی درانتی سے کریں۔ کٹائی کی ہوئی گندم کے سٹوں کا رخ اوپر رکھیں۔ بارش دی وجہ تو چندرے دی وجہ تو بہت خراب ہوئی ہے گندم تے کٹائی اسی کر رہے ہیں جی۔ جڑی صحیح ہے وہ منے کاٹ رہے ہیں، جڑی خراب ہے وہ منے کاٹ کے جی کر رہے ہیں، بار لگا پریاں بھی باندھ رہے ہیں جی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کسان گندم کی گری ہوئی فصل میں کمبائن ہارویسٹر کے استعمال سے گریز کریں۔
आगे बढ़ते हुए बात करें मीठी ईद की आमद है। टोबा टेक्सिंग और नवाह में चीनी की कीमत आसमान से बातें करने लगी है। मार्केट में चीनी 125 से 130 रुपए में फरोख्त होने लगी। उधर कमालिया में चीनी के गोदाम को सील कर दिया गया। टोबा टेक्सिंग और गिरदो नवाह में चीनी की कीमत को पर लग गए। चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मार्केट में चीनी 120 से 130 रुपए में फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि चीनी के बगैर किचन नामुकम्मल होता है। ताहम चीनी की बढ़ती कीमतों के बाद परेशान हैं। रमजान में मशरूबात बनाते हैं जिससे चीनी का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है, लेकिन चीनी की कीमत सुनकर ही मुंह खट्टा हो गया। चीनी के बगैर तो कोई चीज किचन बिल्कुल नामुकम्मल है, तो इसके ये जिली इंतजामिया को चाहिए कि अभी कंट्रोल करे। अभी तो बिल्कुल जो गन्ना है वो खेतों में पड़ा है और शुगर मिल्स बिल्कुल बंद नहीं हुई। ठीक है, अभी जो रेट है तो बाद में तो 200 रुपए तक हो सकता जाए। दुकानदार का कहना है कि चीनी की एक्स मिल कीमत बढ़ने से मार्केट में भी चीनी की कीमत बढ़ा दी गई है। मिल्स मालकान का कहना है कि हमने गन्ना महंगे दामों खरीदा है, इसकी वजह से चीनी की कीमत बढ़ाई गई है। एक्सवेल चीनी का रेट 115-16 रुपए है, 2 रुपए खर्चा आता है और इसको 120 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। कोई वजह नहीं, कोई शॉर्टेज भी नहीं है, बस मिल्स मालकान चीनी बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने गन्ना 400 में खरीदा है, हमें 115 रुपए किलो कास्ट पड़ रही है इसकी, इस वजह से चीनी का रेट बढ़ रहा है। अब मिल मालकान जाने और गवर्नमेंट जाने। चीनी की खुद साख्ता कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है, तो दूसरी जानब कमालिया में जखीरा की गई चीनी के 2 गोदामों से चीनी के 600 से ज्यादा बैग बरामद कर लिए गए हैं और गोदाम को सील कर दिया गया है। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। आगे बढ़े और आपको बताएं, एलपीजी एसोसिएशन फैसलाबाद का सरकारी रेट पर गैस की अदम फराहमी पर एहतजाजी मुजाहिरा। डिस्ट्रीब्यूटर समेत रिक्शा ड्राइवर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की और खूब नारेबाजी भी की। एलपीजी एसोसिएशन फैसलाबाद ने एलपीजी प्लांट्स माफिया और लोकल कोटा होल्डर्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। रैली जीटीएस चौक से जिला कौंसल चौक तक निकाली गई, जिसकी क़ियादत चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोखर ने की। मुजाहिरीन ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को सरकारी रेट पर गैस मुहैया करवाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोखर का कहना था कि 1 अप्रैल को ओगरा ने एलपीजी की कीमत में अवाम को 50 रुपए का रिलीफ दिया, लेकिन एलपीजी प्लांट सरकारी रेट पर गैस नहीं दे रहे। अगर कीमतों में कमी ना की गई तो एहतजाज के दायरा कार को वसी कर देंगे। हुकूमत ने 50 रुपए केजी का रिलीफ दिया था 1 अप्रैल से, 10 दिन गुजर गए, वो नहीं मिला। अवाम तक रिलीफ नहीं जा सका। हम हुकूमत और अवानों तक और डीसी साहब को ये बताना चाहते हैं कि ये जो रिलीफ था हमने नहीं रखा, गैस माफिया के पास है। गैस माफिया एज पर कानून से ओगरा उसको मॉनिटर करे, प्लांटों से गैस उसकी तरसील ठीक है। डीसी साहब वक्ती तौर हमारे मुतालबा सुनते हैं, बाद में कोई नोटिस नहीं लेते, कार्रवाई कोई नहीं करते। सब ये चोर बाजारी हो रही है। लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है इंतजामिया से कि प्लांट माफिया को कंट्रोल किया जाए और जो नोटिफिकेशन इस्लामाबाद से 7 महीने बाद निकलता है उसके मुताबिक हमें गैस मिले। बाद अज़ां एलपीजी एसोसिएशन ने प्रेस क्लब में एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर इरफान खोखर का कहना था एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग की वजह से सरकारी नरखों पर गैस नहीं मिल रही। एलपीजी प्लांट्स और लोकल कोटा होल्डर्स महंगी गैस दे रहे हैं। जिला इंतजामिया गैस माफिया को लगाम डाले। हम आवाम को रमजान के महीने 20 रुपए और किलो छोड़ देंगे। यहाँ पे फैसलाबाद में आज ये एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है, ये पूरे मुल्क में फैलेगा और हम उनको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेडलाइन देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हाजी आबिद हुसैन मुगल, सदर एलपीजी एसोसिएशन गुलाम मोहम्मदाबाद हाजी सईद खाटिया और दीगर भी शरीक हुए। सदर एलपीजी एसोसिएशन गुलाम मोहम्मदाबाद हाजी सईद काठिया और दीगर भी शरीक हुए। कैमरामैन मोहम्मद इशफाक के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। बात करें फैसलाबाद में खवातीन समेत 80 अफराद मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस। FIA ने छानबीन शुरू कर दी, असासजात मुंजमद किए जाएंगे। FIA ने FDA को मरासला जारी कर दिया। मरासले में जायदादों की छानबीन के अहकाम जारी किए गए हैं। FATF की शराइत पर अमल दरामद करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, एपलेट ट्रिब्यूनल का टैक्स केसेस के हवाले से अहम इक़दाम। टैक्स गुजार एक बार अपील मुस्तरद होने पर उसी केस में दोबारा अपील फाइल नहीं कर सकेंगे। उधर ज्वेलर्स को भी POS सिस्टम में शामिल कर लिया गया है। एपलेट ट्रिब्यूनल का टैक्स केसेस के हवाले से अहम इक़दाम। टैक्स गुजार या एखतियार किसी भी केस में एक बार अपील मुस्तरद होने पर उसी केस में दोबारा अपील फाइल नहीं कर सकेंगे। विफाकी टैक्स मुख्तसिब ने हिदायत जारी कर दी। फैसले का इतलाक टैक्स गुजारों और FBR दोनों पर होगा। विफाकी टैक्स मुख्तसिब हुकाम के मुताबिक इक़दाम गैर जरूरी लिटिगेशन की रोकथाम के लिए उठाया गया है। गैर जरूरी कार्रवाइयों से टैक्स गुजारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और केसेस या अपीलों से टैक्स रिकवरी भी मुतासिर होती है।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सेल्स टैक्स के ऑनलाइन तस्दीक के निजाम का दायरा कार वसी करने के लिए ज्वेलर्स को इस सिस्टम में रजिस्टर्ड करने का फैसला कर लिया, जबकि ज्वेलर्स को पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में रजिस्ट्रेशन के लिए SOPs भी वजह कर दिए गए हैं। ज्वेलर्स को दुकानों के रकबे की मुनासिबत से रजिस्टर्ड किया जाएगा। 300 मुरब्बा फुट और उससे बड़ी तमाम दुकानें पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में रजिस्टर्ड करवाने की पाबंद होंगी, जबकि छोटे दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन से मुस्तस्ना करार दिया गया है। दीगर कारोबार को POS में रजिस्ट्रेशन के लिए FBR के कवानीन मुख्तलिफ है। मटीरियल महंगा होने पर फेस्को डिमांड नोटिस के चार्जेस बढ़ा दिए गए। डिमांड नोटिस की कीमत में इजाफा स्टोर चार्जेस और इंस्टॉलेशन चार्जेस की मद में किया गया। डिमांड नोटिस की कीमतों ने बिजली के नए कनेक्शन के मुंतजर सार्फिन पर बिजलियां गिरा दी। मटीरियल महंगा होने पर फेस्को ने डिमांड नोटिस के चार्जेस बढ़ा दिए। डिमांड नोटिस की कीमत में इजाफा स्टोर चार्जेस और इंस्टॉलेशन चार्जेस की मद में किया गया। डिमांड नोटिस कीमतों ने बिजली के नए कनेक्शन के मुंतजर सार्फिन पर बिजलियां गिरा दी। फेस्को ने डिमांड नोटिस में सिंगल फेज मीटर की कीमत 3930 रुपए से बढ़ाकर 4754 रुपए कर दी। 3 फेज मीटर की कीमत 14990 रुपए से बढ़ाकर 18132 रुपए कर दी गई। सिंगल फेज मीटर के डिमांड नोटिस में 472 रुपए स्टोर और 352 रुपए इंस्टॉलेशन चार्जेस शामिल कर दिए गए। 3 फेज मीटर के डिमांड नोटिस में 1799 रुपए स्टोर चार्जेस और 1343 रुपए इंस्टॉलेशन चार्जेस शामिल किए गए। फेस्को हुकाम का इस हवाले से कहना था कि डिमांड नोटिस की फीस में इजाफा नए रेट्स के मुताबिक किया जाएगा। सुई गैस सार्फिन के लिए बुरी खबर, जनवरी से गैस की कीमतों में किए जाने वाले इजाफे के बकाया जात की वसूली का सिलसिला रवा माह से शुरू हो गया है। हुकूमत ने गुज़िश्ता महीने गैस के निर्खों में 112% तक इजाफा किया था। सार्फिन के लिए बुरी खबर, जनवरी से गैस की कीमतों में किए जाने वाले इजाफे के बकाया जात की वसूली का सिलसिला रवा माह से शुरू होगा। हुकूमत ने गुज़िश्ता महीने गैस के निर्खों में 112% तक इजाफा किया था। महकमा सुई गैस ने जनवरी से गैस की कीमतों में किए जाने वाले इजाफे के बकाया जात की वसूली का सिलसिला अप्रैल तक शुरू कर दिया। गैस टैरिफ जनवरी 2023 से लागू किया गया है। बकाया जात की रकम के साथ सार्फिन को बिल भिजवाए जा रहे हैं। नए बिलों में 4 अक़सात के बकाया जात वसूल किए जाएंगे। सार्फिन को इजाफी कीमतों के साथ साथ अब बकाया जात का इजाफी बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। टेक्सटाइल बरामदात मुसलसल छठे महीने भी खसारे में। मार्च माली साल का नवा महीना मगर बेहतरी ना आ सकी। माली साल का मजमूई खसारा 12% हो गया। टेक्सटाइल बरामदात मुसलसल छठे महीने भी खसारे में। मार्च माली साल का नवा महीना मगर बेहतरी न आ सकी। माली साल का मजमूई खसारा 12% हो गया। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की तंजीम एप्टेमा ने रिपोर्ट जारी कर दी। टेक्सटाइल बरामदात में गुज़िश्ता महीने की निस्बत बेहतरी, जबकि गुज़िश्ता साल की निस्बत खसारा देखने में आया। रवां साल मार्च में 21% टेक्सटाइल बरामदात कम हुई। मार्च में बरामदात $1.29 अरब रही। गुज़िश्ता माली साल के 9 महीनों में $14 अरब से जायद बरामदात रिकॉर्ड की गई थी। रवां माली साल के 9 महीनों में बरामदात $12.5 अरब रही। माह रमजान में महंगाई का शैतान बेकाबू, बच्चों के कपड़ों की कीमतों में 20% तक इजाफा होने से आने वाली मीठी ईद की खुशियां फीकी पड़ने लगी। कारोबार में गिरावट आने से ताजिर शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए। ईद की आमद है मगर महंगाई का शैतान बेकाबू हो चुका। गारमेंट्स का कारोबार करने वाले ताजरों को कारोबार में शदीद मंदी से परेशानी का सामना है। ताजिर कहते हैं ईद की आमद है मगर कारोबार ना होने के बराबर है। पहले ईद के मौके पे कारोबार होता था तो गुजारा हो जाता था, मगर अब कारोबार करना भी मुश्किल हो चुका है। कारोबार की सूरत हाल ये है कि पहले जो थे ईद त्यौहार पे काम कर लेते तो खुश होते थे भी चलो ईद आ गई है, कारोबार अच्छा चल गया, हमारे गुजारे हो जाते थे। अब यह है कि ईद त्यौहार पर भी काम करना जो है वो मुश्किल हो गया है। दुकानदार कहते हैं कि गारमेंट्स की कीमतों में इजाफे की वजह से परेशानी बढ़ती जा रही है। ग्राहक को अगर ज्यादा कीमत बताते हैं तो बहस शुरू हो जाती है कि जिस रेट पर हम बच्चों के कपड़े सेल करते थे अब हमें उसी कीमत में मिलते हैं। रेट बढ़ने की वजह से छोटा जो है तबका जो है वो परेशान है। उसको जो है हम जिस रेट पे हम देते थे उस रेट पे अब हमें माल मिलता है, तो फिर हम आगे बेचते हैं तो फिर कस्टमर जो है परेशान होता है। ताजरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि कारोबार का पहिया चल सके। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगाई ने इल्म की शम्मा को रोशन करना मुश्किल कर दिया। गरीब के बच्चों के लिए तालीम हासिल करना नामुमकिन होने लगा। रजिस्टर, कॉपीज, पेन, पेंसिल, रेजर, रबर, ड्राइंग, कलर चार्ट और ज्योमेट्री बॉक्स की कीमतों में 12 से 15% तक इजाफा हो गया। महंगाई के शैतान का गरीब के बच्चों की तालीम पर हमला। स्टेशनरी की कीमतों में 12 से 15% तक मजीद इजाफा कर दिया गया। रजिस्टर, पेंसिल, रेजर, पेन, कापियां, ड्राइंग चार्ट, ड्राइंग कलर और ज्योमेट्री बॉक्स की कीमतों में 25% तक इजाफा। रजिस्टर्ड 150 रुपए से बढ़कर 170 रुपए का हो गया। पेंसिल 180 रुपए दर्जन से बढ़कर 210 रुपए की हो गई। रेजर का डिब्बा 220 रुपए से बढ़कर 250 रुपए और पेन
500 रुपए से बढ़कर 560 रुपए, जबकि ड्राइंग कलर डिब्बा 600 रुपए से बढ़कर 670 रुपए का हो गया। चार्ट 100 पीस 3200 रुपए से बढ़कर 3500 रुपए का हो गया। ज्योमेट्री बॉक्स 310 रुपए से बढ़कर 340 रुपए का हो गया। सदर मिंटगोमरी बाजार हाफिज ताहिर जमील कहते हैं कि स्टेशनरी की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गरीब के लिए बच्चों को पढ़ाना भी मुश्किल हो चुका है। तालीम से जुड़ी चीजों की कीमतों पर कंट्रोल होना चाहिए ताकि गरीब अपने बच्चों को तालीम दिला सके। कागज इतना महंगा हो चुका है कि 20 रुपए वाली कापी, 30 रुपए वाली कापी, 50 रुपए वाली कापी बिल्कुल खत्म हो गई है। कागज की गाड़ी तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया बढ़ गई है। और स्टेशनरी की जो आइटम है वो पेंसिल की डब्बी अगर 180 रुपए की थी अब 220 रुपए की हो गई है। इसी तरह रेजर बढ़ गया है, शार्पनर बढ़ गया है। स्टेशनरी का कारोबार करने वाले ताजर कहते हैं हुकूमत से अपील है कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में रेवेन्यू अफसरान की अदम दिलचस्पी साइलिन के मसाइल बढ़ने लगे हैं। ADCR तहसीलदारों और पटवारियों की इजाफी ड्यूटियां लगने से रजिस्ट्रियों का काम मुतासर। फैसलाबाद में रेवेन्यू अफसरान की अदम दिलचस्पी के बायस साइलिन मसाइल में फंस गए। शहरियों का कहना था कि दूर दराज से काम के लिए आते हैं, मगर इधर पता लगता है कि कोई मुतलका अफसर ही मौजूद नहीं है। ADCR सब रजिस्ट्रार तो अफसर हैं, मगर इधर तहसीलदार और पटवारी भी नहीं मिलते। हर बंदा जो है आटा तकसीम करने पे लगा हुआ है। आपने रश देख लिया कि यहाँ पर रश कितना है, तारीख पे तारीख पड़ रही है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वाबस्ता वकला का कहना था कि अगर अफसरान तवज्जो दें तो बहुत सारे मसाइल फिल फौर हल हो सकते हैं, मगर सूरत हाल इसके बरक्स है। अफसरान बताते हैं कि वो आटा मुहैया करने की लाइनें दुरुस्त करवा रहे हैं। तकरीबन 20-25 दिन हो गए हैं और आटे की जिधर ड्यूटियां लगी हैं वहाँ पे आपको पता ही है क्या सिस्टम है। वहाँ पे लंबी लंबी कतारें लगी हैं और वहाँ पे भी ये मौजूद नहीं है। इस चीज़ का एडवांटेज ले रहे हैं कि इधर भी नहीं बैठते उधर भी नहीं बैठते, अपने घरों में बैठे हुए हैं। साइलिन ने रजिस्ट्रियों का काम तरजीही बुनियादों पर करने का मुतालबा किया ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। सिफारिश लाएं, रजिस्ट्रेशन करवाएं। जंग में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए आई ख्वातीन ख्वार होने लगी। दफ्तर के बाहर बड़ा रश, ना बैठने का इंतजाम, ना ही साए के फ्राहमी। कई दिनों से आने वाली खवातीन की बारी ना आ सकी। माली इमदाद के अलावा मुफ्त आटे के लिए भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर होना जरूरी है, लेकिन जंग में इमदाद लेना तो दरकिनार। रजिस्ट्रेशन ही एक कठिन मरहला बन चुका है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए आई खवातीन ने सेंटर पर सिफारशी कल्चर होने का भांडा फोड़ दिया। एक बंदा आया, वो उत्ते आया, 5 माइयां लेके गया, 500 लिया, 1000 लिया, सानू नहीं पता। पैसे चुक के जेबे पा के ना वो लेके चला गया। सिफारिशा चल रही ने, सिफारिशों तो बिना और कौन। मर्दो खवातीन हजरात ने बताया कि दफ्तर के बाहर मौजूद टाउट 500 से 1000 रुपया लेकर खवातीन की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। दफ्तर के बाहर बड़ा रश, न बैठने का इंतजाम, न ही साय का कोई बंदोबस्त किया गया, जिससे खवातीन हालो बेहाल होती रहीं। किसी को धक्के पड़े तो किसी की बारी न आ सकी। जो लड़के अंदर खड़े हैं वो गेटों पे चढ़ के सब औरतों को बुलाते हैं, कहते हैं कि 1-1000 रुपया दे मुझे, मैं अंदर ले जाता हूँ। सरकारी मुलाजम भी बीच में रले हुए हैं, दफ्तर वाले भी रले हुए हैं, सारे हैं। खवातीन ने अपील की है कि रजिस्ट्रेशन के मराहिल को आसान और शफाफ बनाया जाए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। और यहाँ आपको बताएं, और अब अदालती सरगर्मियों का अहवाल हम जानेंगे इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मातहत अदालत का फैसला कल अदम करार। सजाए मौत के 2 मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए बरी करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान मोहम्मद इखलाक और जहूर अहमद को जमील और अली अहमद के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत का हुक्म दिया गया था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी इनाम इलाही ने मुल्जिमान को सजाए मौत और दीगर सजाओं का हुक्म सुनाया था। मुल्जिमान के खिलाफ 2012 में कत्ल दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। फैसलाबाद में मंशियात केस के मुजरिम को 5 साल कैद 25,000 रुपए जुर्माने की सजा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा शाहिद जमीर ने केस का फैसला सुनाया। मंशियात फरोशी में मुलव्विस मुल्जिम हैदर अली से 1000 ग्राम से जायद मंशियात बरामद की गई थी। मुल्जिम के खिलाफ थाना गुलबर्ग में 9C के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बगैर लाइसेंस और ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। ड्रग कोर्ट ने एक मेडिकल स्टोर को 22,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। चेयरपर्सन ड्रग कोर्ट सैयदा बुशरा नकवी की जानिब से सजा का हुक्म सुनाया गया। बगैर लाइसेंस और ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने वालों के चलान अदालत पेश किए गए। अदालत ने एक मुल्जिम को 22,000 जुर्माने की सजा सुनाई। ममनुआ अद्वियात फरोख्त करने पर अदालत की जानिब से आखिरी वार्निंग दी गई। आगे बढ़े और आपको बताएं, पेट्रोल महंगा, कीमतों में इजाफे के बाद मोटरसाइकिल भी पहुंच से दूर। महंगाई के सताए अवाम परेशान हो गई। शहरी सस्ती सवारी साइकिल लेने पहुंच गए।
टोबा टेक्सिंग के शहरियों ने आए रोज पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नजर सस्ती सवारी का आसान हल ढूंढ लिया है। शहरी साइकिल खरीदने पहुंच गए। शहरियों ने कहा कि साइकिल चलाना सेहतमंद सरगर्मी है, इससे पेट्रोल की बचत भी होती है और सेहत भी अच्छी रहती है। पेट्रोल की कीमत कितनी महंगी है, पेट्रोल कितना महंगा हो चुका है। गरीब आवाम के लिए यहाँ साइकिल का रेट देख लें, 14,000 का 12,000 का साइकिल आ जाता था, कहाँ जाके 20-25 हज़ार का साइकिल मिल रहा है। गरीब आवाम कहाँ जाएगी। पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है, इसकी वजह से हम साइकिल में आ गए हैं। दोबारा हम मोटरसाइकिल को खड़ा कर दिया है हमने। साइकिल की खरीदारी का रुझान